गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट पार्ट उसमें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था और इस सेकंड पार्ट में हम लोग रिमेनिंग पोर्शन जो इस चैप्टर का है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था और जाना था और सीखा था कि किस तरह से लेंचो एक किसान होता है, एक फार्मर होता है और उसके बच्चे होते हैं। वो सब लोग खेत में काम कर रहे होते हैं और लेंचो प्रिडिक्ट करता है कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश जब तक शाम को आती है उसके साथ साथ ओले भी आने लगते हैं और ओलों से उस किसान की लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और वो दुख में डूब जाता है। और उसके बाद वो एक लेटर लिखता है, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ द चैप्टर ऑल्सो एंड दैट इज़ अ नेम ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, अ लेटर टू गॉड। वो एक चैप्टर लिखता है गॉड के नाम और उसमें क्या लिखता है? वो लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीडेड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has destroyed my field। वो लिखता है कि हे भगवान, जैसा कि आप जानते हो कि ओलों ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है और मुझे फिर से फसल को बोने के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए अबाउट 100 pesos की नीड है, आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हो कि ओलों ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। ये लिखने के बाद एनवेलप के ऊपर वो एक एड्रेस डालता है और वो एड्रेस होता है टू गॉड, यानी गॉड का एड्रेस उसमें डाल देता है और उसको जो है पोस्ट ऑफिस तक जाकर उस चीज़ को मेल बॉक्स में डालते, स्टैंप लगाता है, उसके बाद मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स में डालने के बाद वापस आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा पिछला लेक्चर हो चुका था। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पोर्शन इन दिस वीडियो। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। Never in his career as a postman had he knew that address. The postmaster, fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up an idea that answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked the money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man
who has performed a good deed looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for the paper and ink. On the public writing table, he started to write with the much wrinkling of his brow caused by his effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it because he was very curious to open it, what he had done. It said, God, of the money that I asked you for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho write a letter to God, and in this letter he wrote very amazingly his feelings and his disappointment, his difficulties, needed as well as some money. Let's explain the remaining portion of this chapter. One of the employee who was a postman. मैंने आपको बताया था कि जब उसका नुकसान हो गया तो लेंचो ने एक लेटर लिखा और वो लेटर गॉड के नाम था. उस लेटर में उसने लिखा कि हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मदद कौन करेगा. तो ये लेटर लिखकर उसने जैसे ही मेल बॉक्स में डाल दिया और वो चला गया. जब वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, वो सारे लेटर जो उसमें डले होते हैं मेल बॉक्स में इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जहाँ के वो लेटर होते हैं वहाँ पहुँचाया जाता है. एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प करता था, पोस्टमैन भी था और भी काम करता था. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है जब उसको इस प्रकार का लेटर मिला जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, गॉड, एड्रेस गॉड का डला हुआ था. वो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग हार्टली. लाफिंग हार्टली का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, चिल्ला चिल्ला कर हंसना. हंसने लगा जोर जोर से. एंड शोड हिम, और अपने बॉस को उसने दिखाया. क्या दिखाया? द लेटर टू गॉड. देखिए मुझे क्या मिला हुआ है, एक लेटर मिला है जो गॉड के नाम. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने जीवन में कभी नहीं, पोस्टमैन की नौकरी करते हुए, एम्प्लॉय होते हुए, अपने जीवन में कभी भी उसने, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस पहले कभी नहीं आया था. ना ही वो इस प्रकार का एड्रेस जानता था कि कोई लेटर जो गॉड के पास पहुंचाया जा सके, ऐसा कोई एड्रेस वो कभी नहीं जानता था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा, एमिएबल फेलो और थोड़ा हंसमुख, सबसे मिलने जुलने वाला. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा जोर जोर से. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर जोर से उसने लेटर को फेंका, फट से फेंक दिया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. कमेंटेड, और चिल्लाता है और कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना मजबूत यकीन, जिसको विश्वास बोलते हैं, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं. व्हाट फेथ, क्या यकीन है, कितना मजबूत. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन, काश मुझे भी इस व्यक्ति की तरह भगवान पर यकीन होता.
काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास, इतना पक्का यकीन होता। हु रोट दिस लेटर, जितना कि इस व्यक्ति में है जिसने इस लेटर को लिखा है। भगवान के ऊपर इतना विश्वास, इतना यकीन किसी के पास नहीं देखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ अपना रिश्ता शुरू किया, जिसने भगवान के साथ अपना करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार शुरू किया, लिखावट एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात का पहुंचाना, संचार करना, कम्युनिकेट करना करस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था, मोटा, तगड़ा, हेल्दी, जब उसने पोस्ट ऑफिस में, जब पोस्टमैन उसको इस एड्रेस का यानी गॉड के एड्रेस का वो लेटर शो करता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है कि व्हाट अ फेथ, क्या यकीन, क्या ट्रस्ट है, कितना फेथ है। काश मेरे अंदर भी इतना ही फेथ होता। जिसने इस लेटर को लिखा है, जिसने भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस शुरू किया, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट ऑफ फेथ इन गॉड, तो उसने तुरंत ठान लिया कि जिसको भगवान पर इतना विश्वास है उसका विश्वास टूटने नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर इतना विश्वास करता है तो उसका विश्वास टूट ना पाए, क्योंकि फिर वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर के दिमाग में, मस्तिष्क में एक विचार आया, एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, चलो इस लेटर का रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं, जवाब देते हैं। जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसको जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उस पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये सबूत था, ये गवाह था कि उस लेटर में सिर्फ अच्छी बात के, सिर्फ स्याही और पेन के, सिर्फ कागज़ के और भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ छिपा हुआ, समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, इसके अलावा भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर ने सोच लिया था, आखिरकार मेरे दिमाग में जो विचार आया है कि इस लेटर का जवाब देते हैं, तो उस लेटर के जवाब का वो जो सॉल्यूशन था उसके पास, वो उसी रेजोल्यूशन पे, उसी का रिजल्ट निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टक था, प्रतिबद्ध था कि मुझे इसका जवाब देना है, आंसर करना है, कैसे भी करूं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज से कहा, ऐसा करिए आप सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करिए, जो जितने दे सकता है अपने पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ ए सैलरी, और उसने भी, पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस पार्ट में अपनी भूमिका निभाई। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने, सेवरल फ्रेंड ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, वो भी ऋणी हो गए कि चलो कुछ न कुछ चैरिटी के रूप में, एक दान पात्र के रूप में दे देंगे, और उसका भला भी हो जाएगा, उसकी मदद भी हो जाएगी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, उसने अपने एम्प्लॉय से भी पैसा इकट्ठा किया, अपनी सैलरी से भी पैसा निकाला, और साथ ही साथ उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन फिर भी 100 pesos इकट्ठे नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पहुंचा पाया, 50% से ज़्यादा, 60-70% जितने भी परसेंट पहुंचा हो, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही कर पाया। यानी फुल 100 pesos जो उसने आवश्यकता थी, जो उसने मांगे थे, पूरे 100 pesos वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने इस पैसे को एक लिफाफे में रख दिया
और उस लिफाफे में रखने के बाद उसमें एड्रेस क्या डाल दिया, लेंचो, यानी कि वो जो लेटर है वो लेंचो के नाम है, लेंचो तक वो लेटर पहुंच जाएगा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस लेटर में सिर्फ एक शब्द लिखा, एक शब्द कंटेन किया कि ये जो लेटर है वो कहाँ से आ रहा है। ऊपर तो लिख दिया टू लेंचो, लेकिन ये आया कहाँ से है, उसके अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा था और वो साइन थे गॉड के। यानी कि ये जो लेटर है वो लेंचो तक पहुंचा है और उसको पहुंचाने में किसने मदद की है, गॉड ने। यानी कि वो लेटर, उसका रिप्लाई, उसमें जो पैसे हैं, वो जवाब उसके पास गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट जो आने वाला जो रविवार था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो हमेशा की तरह, यानी वो जो लेटर उसने पहुंचाया था गॉड को, उसके बाद का जो संडे आया, हमेशा वो आता था, लेकिन इस संडे को क्या आया, केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। हमेशा की तरह जो आता था उससे कुछ जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए भी कोई पत्र, कोई खत आया है। क्यों पूछने आ गया, हमेशा की तरह पूछने आता था कभी कि लेंचो के लिए कोई खत कहीं कोई रिश्तेदार से आया है, लेकिन इस बार उसको पता था कि उसका लेटर कंफर्म आएगा, क्योंकि उसने गॉड को लेटर लिखा हुआ था और उसको पूरा यकीन, पूरा ट्रस्ट, फेथ था कि गॉड के पास से रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा। इसलिए हमेशा की तरह जब वो खत पूछने आता था उससे कुछ समय पहले ही वो आ गया, क्या उसके नाम कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him। पोस्टमैन खुद, अभी तो पोस्टमैन क्या हुआ करता था, उसको जो भी लेटर आया करते थे यहाँ से वहाँ किया करता था, लेकिन पोस्टमैन तैयार बैठा था कि कब लेंचो आए और मैं उसे ये लेटर थमा दूँ। पोस्टमैन ने अपने हाथों से लेंचो को वो लेटर थमाया कि ये लीजिए, आपके नाम कोई लेटर आया हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। लेटर को किसने थमाया, पोस्टमैन ने। और जबकि जो पोस्टमास्टर था वो क्या कर रहा था, वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, वो इस व्यक्ति को देख रहा था, who has performed a good deed, जो कि अच्छा दिख रहा था, looked on from his office, वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था और अपने ऑफिस से बैठ के ही एक्सपीरियंस ले रहा था, बाहर का पूरा नज़ारा देख रहा था, किस तरह से लेंचो दिखता है, किस तरह से उसका अपीयरेंस है, उसका बाहर का स्वरूप है, संरचना है, और किस तरह से लेंचो ने पोस्टमैन से उस लेटर को लिया है। वो अपने ऑफिस से बैठे बैठे पूरा नज़ारा पोस्टमैन देख रहा था और एक्सपीरियंस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसे को देखा तो पोस्टमैन सोच रहा था इसको थोड़ा आश्चर्य होगा, थोड़ा हैरानी होगी कि अरे पैसे आ गए, कहाँ से आ गए पैसे। उसको हैरानी और आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, इतना सा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ टू सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बल्कि लेंचो को तो पूरा का पूरा ये विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, पूरा विश्वास था कि उसको पैसा आएगा, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला तो वह नाराज़ हो गया। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब उसने पैसे को गिना तो लेंचो के अंदर से वो आश्चर्य नहीं हुआ कि गॉड के पास से जवाब आया, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा फेथ था गॉड के ऊपर कि गॉड को वो जो लेटर लिख रहा है वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो पोस्टमैन यही देखना चाहता था कि क्या उसको आश्चर्य हुआ
कि गॉड के पास से जवाब आया, लेकिन उसको आश्चर्य नहीं हुआ, उसको तो कॉन्फिडेंस था कि गॉड के पास से रिप्लाई आएगा। लेकिन वो थोड़ा नाराज़ जरूर हुआ जब उसने लेटर को खोलकर पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। और लेंचो कहता है भगवान से गलती तो हो नहीं सकती, यानी उसने 100 पेसोस मांगे थे और 100 पेसोस तो उसके पास तक पहुँचे नहीं, इतने इकट्ठे ही नहीं हो पाए थे। तो लेंचो कहता है कि भगवान से मिस्टेक तो हो नहीं सकती, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, हो ही नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। और कहता है लेंचो ने जो मांगा है उसको भगवान मना भी नहीं कर सकते। पहली चीज़ कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, लेंचो ने कहा, और दूसरी चीज़ कि लेंचो ने जो भगवान से मांगा है भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते, इतना विश्वास था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और कहा कि मुझे एक कागज़, इंक और लिखने की कलम दीजिए। मैं अभी पहले के टाइम पे क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में ही एक स्थान होता था जहाँ पर इंक भी रखी होती थी और वो जो कलम चलती थी लकड़ी की, पेड़ की कटी हुई, वो रखी रहती थी, कागज़ मिल जाता था। गरीब लोग हुआ करते थे पहले, तो जब ब्रिटिश शासन था तो इस तरह की सुविधा फैसिलिटी हुआ करती थी कि आप पोस्ट ऑफिस जाके खुद लेटर लिख के वहीं स्टैम्प लेके और पोस्ट कर सकते थे, ऐसी फैसिलिटी हुआ करती थी। अभी भी बहुत सारे बड़े शहरों में ऐसा होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत जो है लेंचो खिड़की के पास गया, पेपर मांगा, इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और कहाँ पर, पब्लिक राइटिंग टेबल पर एक टेबल होती है जहाँ पर सब लोग लिखते हैं। आप बैंक जाते होंगे, एक राउंड टेबल होती है, उस पर आप लोग डिपॉजिट और जो है विड्रॉल का फॉर्म भरते हो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और जब कोई लिखता है तो अपने आईब्रो को ऊपर ले जाएगा, नीचे लाएगा, ऊपर ले जाएगा, वो भी ऐसा कर रहा था। कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उसके आइडियाज़ में, उसके विचारों में, वो जो लिख रहा था, लिखने में जो भी विचार, जो भी आइडियाज़ लग रहे थे, जो भी उसकी सामर्थ्य लग रहा था, एफर्ट लग रहा था, उससे उसकी ब्रोज, उसकी भौं जो है ऊपर और नीचे बार बार आ और जा रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, तो आपने भी देखा होगा जब भी कभी भी आप जो है कुछ लिखते हो, जैसा शब्द आता है वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आते हैं। एग्ज़ाम टाइम पर आप देखिए कितने एक्सप्रेशन बनाते हैं अलग अलग टाइप के। जिससे बन रहा होता है उसका स्माइलिंग फेस होता है, जिससे बन नहीं रहा होता उसका बड़ा टेंशन में फेस होता है, जो थोड़ा सा चीटिंग करना चाहता है वो कंफ्यूज रहता है, कहाँ को देखें, उनसे बन रहा, मुझसे नहीं बन रहा। तो तमाम प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस यू कैन सी इन द एग्जामिनेशन। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना बंद किया, लिखना फिनिश किया, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। तो विंडो के करीब गया, जब उसने लिख लिया, पेपर ले लिया था, इंक ले ली थी, कलम ले लिया था, लिखना जब उसने फिनिश कर लिया तो वो विंडो के पास पहुंचता है, बाई अ स्टैम्प, टिकट खरीदता है, विच ही लिक्ड, उसके बाद उसे चिपका देता, लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप। पहले उसमें कुछ लगाता है, लिक्ड करता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, ऐसा टिकट होता है आप अपनी ज़बान की लार उसमें लगा देंगे, वो चिपक जाएगा। तो उसको लिक्ड करता है एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद लगाता है टू द एनवेलप विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और लगाने के बाद अपनी मुट्ठी से फिक्स कर देता। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को आप चिपकाते हो तो अपनी मुट्ठी मारते हो उसमें, जैसे ही मुट्ठी को आप ऐसे करोगे तो वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी और वो चिपक जाएगी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और लिखने के बाद उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में छोड़ दिया, मेल बॉक्स में रख दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब वो लोग बड़े क्यूरियस थे, पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर वर ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू ओपन द लेटर, व्हाट ही हैड रिटन इन दिस लेटर। जैसे ही उसने उस लेटर को उस मेल बॉक्स में छोड़ा, इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। हे भगवान, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे वो पैसों में 100 पैसों जो मैंने आपसे मांगे थे वो ओनली 70 पैसोस ही मेरे तक पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के पैसे भी मुझे
भेज दो। आपने 70 पेसोस मुझे भेजे हैं, जितने बाकी पैसे बचे हुए हैं वो बाकी के पैसे भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत आवश्यकता है। भगवान, मैंने क्या लिखा उसने लेटर में, जब जैसे ही पोस्टमैन ने उस लेटर को खोला उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, हे भगवान मैंने 100 पेसोस आपसे मांगे थे और आप, क्योंकि लेंचो जानता है कि भगवान से गलती हो नहीं सकती और ना ही भगवान रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। लेंचो सोच रहा था, ऐसा लेंचो का सोचना था। जबकि आप सभी जानते हैं कि लेंचो को जो मनी आई है वो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने इकट्ठा करके ही तो पहुंचाया है, सारे लोगों ने मिलकर ही तो वो पैसे पहुंचाए हैं। सिंस आई नीडेड वेरी मच, मुझे उन पैसों की बहुत आवश्यकता है भगवान, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो मुझे बाकी बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिस से मत पहुंचाना। क्या कह रहा है लेंचो, सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस से नहीं पहुंचाना, कहीं ना कहीं गोलमाल है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो वो बेईमानों का एक झुंड है, एक ग्रुप है। लेंचो उसने साइन कर दिया। लेंचो ने ये लेटर लिखा भगवान को कि आप मुझे जो पैसे पहुंचाना वो आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत पहुंचाना, वो आप मुझे किसी दूसरे तरीके से पहुंचाना ताकि मेरे पूरे के पूरे पैसे मेरे तक पहुंच सकें। तो जब पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, तो बाकी की मदद भी उसकी ना की होगी, क्योंकि लेंचो ने तो उन लोगों को बेईमानों का एक क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। जबकि उसकी मदद तो उन्हीं लोगों ने की थी, उन्हीं एम्प्लॉय ने की थी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पोस्ट मास्टर ने की थी, उनके दोस्तों ने की थी। लेकिन लेंचो तो इतना ज़्यादा फेथ था लेंचो को कि उसके फेथ में उसको ये भी नहीं दिखा कि कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मेरी मदद नहीं कर सकता है। तो इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, comment in the comment box. You can also come to school to discuss this topic with us. Thank you very much.